Good morning, Bacha Party. I heartily welcome to all of you in our channel, Avin Academy. Today, we will discuss JEE of Fluid Mechanics Part 2. Let's see. First problem. The problem is front of you, a soap bubble blown by mechanical pump at mouth of a tube, increasing volume with time at a constant rate. The graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by. You can here given four option. Let's see. One is first I select the marker color. Let's see. The option A is given like that. A graph. The graph is given P versus 1 upon T. This is the straight line in option A. In option B, it is given P versus log T graph. It is also straight line. And in option C, is given P versus T graph is also straight line. And last option is given P versus 1 upon T cube. Its graph is also straight line. आपको बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है. लेट्स सी. तो यहाँ आप क्वेश्चन पे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक चीज यहाँ दिया हुआ है, जो वॉल्यूम का रेट है, इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ टाइम एट अ कांस्टेंट रेट. बस इसी को पकड़ना है कि भाई dv बाई dt इज अ कांस्टेंट. जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट, तो आप इसको मान लो c. तो dv इज व्हाट, c dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो dv का v होता है, c इज अ कांस्टेंट, टाइम का t. Now we already know the formula of volume. Here can given soap bubble. Soap bubble का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब c इंटू टी. तो यहाँ हम अगर r क्यूब को सब्जेक्ट बनाए तो 3c/4 पाई t. And if we remove the cube and other side, these all are the constant, so we take it k and t raised to 1/t. चलिए, अब हम सब जानते हैं प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. प्रेशर इनसाइड द टॉप बबल कितना होता है, Pi is equal to P naught plus 4T by R. And we put the value of R here. This is 4T. This is 4T. This is 4T upon K T raised to 1/3. Here you can see that P naught is the constant value, 4T is also constant, K is also constant. So P is inversely proportional to T raised to 1/3. बट यहाँ हमें ऑप्शन डी में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि P वर्सेस 1/t क्यूब का ग्राफ दिया है. P raised to 1/t क्यूब. यहाँ सॉरी 1/t क्यूब आएगा. हाँ, 1/t क्यूब. तो इसका जो ग्राफ दिया है आपको, से क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 1/3. दिस इज द ऑल्सो 1/1/t raised to 1/3. You can solve it. This
P is directly proportional to 1 by T raised to 1 by 3. Correct option is the D. Let's see next story में क्या दिया है. Here you can see the problem. Next question is given: liquid of density rho is coming out of hose pipe of radius A with horizontal speed V and hits a mass. A 50% of the liquid passes through the mass unaffected. 25% lose of all its momentum and 25% come back with the same speed. The resultant pressure on the mass will. Just suppose you have given mass like this, and here is the pipe where the fluid is coming, and this fluid strike with this mass, तो 50% फ्लूइड तो ऐसे ही निकल जाता है. बाकी का जो 25% है इसका मोमेंटम वो लूज कर देता है और वहां पे ही डायरेक्ट गिर जाता है, और रिमेनिंग 25% है वो टकरा के बाद सेम स्पीड से वापिस आता है. ठीक है, सेम स्पीड से वापिस आ रहा है. तो आपको पूछा है द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैस. रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैस विल बी. तो रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करना है. रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि पहले मास फाइंड कर लेते हैं हम कि जो मास वहां पे पर यूनिट टाइम में कितना आ रहा है. तो मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम, तो dm by dt is what? Density to volume on time. Density volume यानी area into length upon time, and length upon time it is density area into velocity. Density to area into velocity. तो ये हमें यहाँ पे का मास रेट मिल गया. नाउ वी कैन सी हियर in a question is given 25% lose its momentum. The force exerted by 25% 25% liquid which lose its momentum इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा. तो फोर्स के लिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू द फोर्स. तो यहाँ P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, देन नॉट द dm बाई dt, और ये कितना 25%. तो ये हो जाएगा आपका 1/4 वेलोसिटी एज इट इज dm बाई dt हमने फाइंड किया है रो av. This will become 1/4 rho av square. This is the first equation. Now see the remaining 25% liquid strike with the mass and return. तो आपने पढ़ा हो कि जब ये वॉल है, यहाँ पे अगर ये m मास का वॉल है और वो v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिटर्न आता है, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है विच इज 2mv. कितना होता है 2mv. तो यहाँ पे भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. फोर्स एक्सर्टेड बाय 25% liquid which strike
and return with same speed। ये जो लिक्विड है जो रिटर्न आ रहा है सेम स्पीड से, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसको मान लेते हैं F2। F2 इज व्हाट, सेम हियर dp by dt, बट यहाँ हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 2 dp by dt हो जाएगा। और सेम हियर इसको हम 25% से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू वेलोसिटी इंटू dm by dt। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2v, और dm by dt इज रो ए वी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रो ए वी स्क्वायर। चलो, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल हमें फोर्स पूछा है, द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मेस। टोटल प्रेशर पूछा है, क्या पूछा है, प्रेशर। चलिए, तो प्रेशर फाइंड करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो, तो प्रेशर ऑन द मेस P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स हमने फाइंड किया 1/4 रो ए वी स्क्वेयर प्लस 1/2 रो ए वी स्क्वेयर बाई ए। तो ए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 3/4 रो वी स्क्वेयर। दिस इज द प्रेशर, इज द प्रेशर। आगे स्टेप और लिखना चाहो तो रो वी स्क्वेयर को कॉमन निकाल लो, 1/4 प्लस 1/2, और सिंप्लीफाई करोगे तो रो वी स्क्वेयर, एलसीएम लो तो यहाँ पे 4 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से, तो 1 प्लस 2/4, सो विल गेट आंसर 3/4 रो वी स्क्वेयर। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1/4 रो वी स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है 3 यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंट इनटू सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक आपको यूनिफॉर्म ट्यूब दिया, इट्स बेंट into a circle of radius r in the vertical plane, equal volumes of two immiscible liquid whose densities are ρ1 and ρ2, ρ1 is greater than ρ2, fill half the circle, the angle theta between the radius vector passing through the common interface, the vertical is। तो आपको ये कितना एंगल होगा वो बताना है चारों में। तो यहाँ आपको 2 लिक्विड दिए, ये है D2 और दूसरा है D1। दिस इज D1, दिस इज D2 एंड इमिस्किबल, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो, दोनों सेपरेट ही रहेंगे। यहाँ एंगल अल्फा है और दोनों लिक्विड जो है इसके बीच भी एंगल जो है वो 90 डिग्री, एंगल कितना है 90। तो ध्यान से देखना, यही है 2 क्वेश्चन। इसके बाद का जो एक और न्यूमेरिकल दिया है वो भी सेम इसी डायग्राम के साथ सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में। और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इसके बाद हम देखने वाले हो, वो 2014 में। तो देखो, यही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपको एक बेनिफिट मीन्स एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि नहीं आप स्कोर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी नेसेसरी टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, एक बार देखना बहुत जरूरी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कैसा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज नीट भी, दोनों देखना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये एंगल है अल्फा, वर्टिकल लाइन है। ये कौन सा लाइन है ऐसा समझ लो, ये है वर्टिकल लाइन। तो यहाँ ये जो एंगल होता है इट्स बिकम 90 माइनस अल्फा,
और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये बन जाएगा अल्फा। सेम ईयर यहाँ ये अल्फा है तो दिस एंगल बिकम 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों लिक्विड सेपरेट है 90 डिग्री पे। ये चीज याद रख लो, ये सब क्वेश्चन में दिया है, ये आपको चीजें पता चल जानी चाहिए, उसी से आप सोल्व कर सकते, यहाँ से हिंट मिलता है आपको। तो अब यहाँ देखो तो रेडियस आर दिया है, कितना दिया है, रेडियस ऑफ दिस uniform cube is a r. So here you can see the height of this liquid, ये आपको फाइंड करना है। तो ये r है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा r cos अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा r sin अल्फा। मैं इसे लिख सकता हूँ r sin अल्फा, ठीक है। ये कितना आएगा, r sin अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कंपोनेंट आपका होगा cos अल्फा, r cos अल्फा एंड दिस विल r sin अल्फा। चलिए आगे देखते हैं, ये जो है 90 माइनस अल्फा है तो ये लिक्विड का जो हाइट है वो आपको कितना मिलेगा। तो ये हाइट आपको मिलेगा, अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हो, ये रेडियस r है तो ये वाला कंपोनेंट आपका होगा r cos 90 माइनस अल्फा, r cos 90 माइनस अल्फा, और ये वाला वर्टिकल तो ये हो जाएगा r sin 90 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा r cos अल्फा। कितना हो जाएगा, r cos अल्फा। बहुत ही आसान है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। हाँ अब ये लिक्विड का बात करें जो इस साइड है, इसका हाइट फाइंड करना है तो ये आपको इस वाले कंपोनेंट से मिलेगा। तो ये यहाँ पे देखो अल्फा एंगल दिया है तो ये वाला r cos अल्फा, ये कंपोनेंट क्या हुआ, r cos अल्फा हुआ। ये जो है ये आपको कितना मिलेगा, r cos अल्फा है, ठीक है। और टोटल रेडियस r है, टोटल रेडियस कितना है r, तो ये कंपोनेंट आपको फाइंड करना है तो इसमें से आपको r माइनस r cos अल्फा करना पड़ेगा। तो r आपका बाहर आ जाएगा तो इट विल बिकम r ब्रैकेट 1 माइनस cos अल्फा। चलिए आप, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये हाइट फाइंड करना है, जो लिक्विड है ना इसकी ये हाइट कितनी है, ये फाइंड करने के लिए यही मैंने रेडियस वेक्टर लिया, रेडियस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट r cos अल्फा और ये वाला होगा परपेंडिकुलर r sin अल्फा, बट r sin अल्फा हमारा कोई काम का नहीं है। r cos अल्फा ये मिला, अब टोटल रेडियस r है तो r में से इसको माइनस कर दो तो आपको ये वाला हाइट मिल जाएगा। तो सेम हियर ये भी लिक्विड है, इसका भी हमें ये वाला हाइट फाइंड करना है। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला कंपोनेंट होगा r cos 90 माइनस अल्फा, तो दिस विल बिकम r sin अल्फा। अब ये r sin अल्फा है और रेडियस r है तो इससे आप माइनस कर दो तो r माइनस r sin अल्फा, ये वाला ये हाइट हो गया। तो इसमें से आप r को कॉमन निकाल लो तो इट्स विल बिकम r1 माइनस sin अल्फा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले इसमें भी यही डायग्राम है और सेम चीज है, ठीक है। चलिए तो इसको आगे अब सॉल्व करते हैं हम, देखिए कैसे होगा। हाँ प्रेशर एट लोअर पॉइंट, हम ए पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट ए, प्रेशर एट ए point both liquid are in equilibrium, both liquid are in equilibrium state। जैसे स्टेट में दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई इस साइड का जो प्रेशर है या लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर है विच इज इक्वल टू द दिस साइड ऑफ लिक्विड प्रेशर।
तो प्रेशर, दिस इज द लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट साइड, दोनों साइड का इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ना तो ये लिक्विड ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इट मीन्स कि ये स्टेबल स्टेबल है, यानी दोनों साइड प्रेशर सेम है। तो इस साइड का जो लिक्विड है इसका प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ρ1GH1। इस साइड का जो लिक्विड है इसका प्रेशर तो भी है ρG, रो हमें पता नहीं है, तो डेंसिटी में ऐसे ही लिख रहा हूं, बाकी आप इसको ρ2GH2, तो इसमें G तो कैंसिल ही होने वाला है। चलिए ρ1, यानी इस साइड का मैं बात करूं तो ρ1G, H1 क्या है, H1 इज दिस R1 माइनस साइन अल्फा। चलिए इस साइड की बात करें तो इस साइड ये जो हमारा फर्स्ट लिक्विड है इसका हाइट ए है, दिया है ना आपको ये वाला, तो इसको लिखना है आपको। तो ρ1GH2 बोल दो आप इसको, तो ये हो जाएगा R1 माइनस कॉस अल्फा प्लस, अभी ये लिक्विड जो है उसका टोटल हाइट अगर देखा जाए तो ρ2 इसका डेंसिटी है, G is the gravity and total height of liquid R sin alpha plus R cos alpha। R को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और एक ही ब्रैकेट में cos alpha प्लस sin alpha। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जी आर को कैंसल कर देते डायरेक्टली, ρ1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ρ1 माइनस ρ1 साइन अल्फा इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ1 cos alpha प्लस ρ2 cos अल्फा प्लस ρ2 साइन अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो तो ये ρ1 और ρ1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ρ1 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ρ1 माइनस ρ1 cos अल्फा, ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ρ1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से ρ2 कॉमन निकल जाएगा तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। चलिए तो इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ, देखिए आप ρ1 ρ1 कॉमन आ गया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इस साइड, ρ2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ देखें, एक बार देख लेते हैं, हाँ इस साइड साइन अल्फा इस साइड cos अल्फा, तो cos अल्फा इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ρ1 cos अल्फा माइनस ρ1 साइन अल्फा। चलिए अब ρ1 अपॉन ρ2, रेशियो ऑफ डेंसिटी ही हमें पूछा है थी, तो यहाँ आप लिख सकते हो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये आया फाइनल आंसर अभी तक। अभी हम इसको आगे और जैसे सॉल्व करें तो दोनों साइड अगर मैं cos अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, cos अल्फा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इससे डिवाइड करते हैं cos अल्फा, तो दिस विल बिकम 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा। तो ρ1 अपॉन ρ2 ये आंसर आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ यहाँ हमें दिया है कि there is a circular tube is vertical plane, the two liquid which do not mix, density d1, density is d1, and another liquid having density d2, each liquid subtend 90-degree angle at center of radius, their interface makes an alpha with vertical ratio d1 by d2 is what, density। यही डायग्राम है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको देखो क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, तो इसी का ये आंसर है।
तो हमने आगे सॉल्व किया वो प्रॉब्लम में, यहाँ पे आपको इसका आंसर। और ये देखो ये कब पूछा गया था, 2014 में क्वेश्चन, और अभी पहले हम जो सॉल्व कर रहे थे वो 2018 में पूछा गया। तो देखिए इसका, हाँ ये इसका आंसर आ गया 1 + 10 अल्फा माइनस 1 माइनस 10 अल्फा। हाँ यहाँ तक आया। अभी अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर बाकी है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो रो 1 माइनस रो 1 10 अल्फा इज इक्वल टू रो 2 प्लस रो 2 10 अल्फा। तो अब हम क्या करते हैं, 10 अल्फा जो है इसको इस साइड लेके जाते हैं, इस साइड लेके आते हैं, दिस विल बिकम रो 1 माइनस रो 2, इस साइड जाएगा तो 10 अल्फा कॉमन, ब्रैकेट रो 1 प्लस रो 2 आ जाएगा, और 10 अल्फा को सब्जेक्ट बना लो, तो इट्स विल बिकम रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, और इफ वी रिमूव द 10, देन दूसरी साइड जब 10 जाएगा तो 10 इनवर्स, दिस इज रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे आया। हाँ, तो यहाँ 4 ऑप्शन में देखो आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ 10 इनवर्स π/2 दे दिया है, यहाँ पे भी 10 इनवर्स π/2 है। ठीक है, यहाँ साइन में थोड़ा चेंजेस है, और इसमें दिया है 10 इनवर्स π रो 1/रो 2। तो ये चारों ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो करेक्ट जो आंसर है वो नॉन ऑफ दी एबोव, नन ऑफ दी एबोव, एक भी नहीं आएगा। और एक देखो 2018 में पूछा यही, तो अगर आपने 2014 का वही क्वेश्चन अगर सॉल्व किया हो तो ये भी आपके लिए आसान हो जाता। इसके एक स्टेप और आगे आपको सॉल्व करने के लिए पूछ लिया था। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको मैं अब सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, वहाँ पे आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया सॉल्यूशन, उसी का ही सॉल्व बीच में मिड सॉल्यूशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट story in front of you. A uniform cylinder of length and mass m having cross-sectional area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it's half submerged in a liquid of density. At equilibrium position, the extension x0 of the spring when it is in equilibrium. तो यहाँ पे हमें लिक्विड का डेंसिटी हम सिग्मा लेंगे। हाँ, यहाँ आपको ये सिग्मा दिया है, ठीक है, सिग्मा आएगा। चलिए अब बोला क्या है वो थोड़ा समझ लो। एक एम मास का ब्लॉक है, इसको हमने लिक्विड के अंदर डीप किया है, हाफ सबमर्ज। कितना, हाँ, इसको खींचने के बाद छोड़ दिया, तो ये हाफ सबमर्ज है, तो ऑब्वियसली एम जी इज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी जो लगता है। फिर आपने पढ़ा है कि भाई बायोन्सी फोर्स इट इज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो स्प्रिंग है इसको एक्सटेंड करते हैं, तो जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक फोर्स लगता है, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो एक्ट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ये जो वेट फोर्स की वजह से इसका एक्सटेंशन हुआ, तो इसकी वजह से जो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर क्रिएट होता है, विच इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, बायोन फोर्स ड्यू टू लिक्विड, दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पूछा एक्स एक्स नॉट, यानी कि कितना एक्सटेंशन होगा, एक्स नॉट आपको फाइंड करना है। So same here we can say that this system is also in equilibrium. At equilibrium, you can see the mg is equal to fb plus fr, and this mg is equal to buoyant force यानी m dash z plus k x naught। अब हम बात करें mg, तो m dash is what, m dash is the mass of displaced liquid,
एंड मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड यानी लिक्विड का डेंसिटी मान लो सिग्मा है, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, सिग्मा इंटू वॉल्यूम प्लस के एक्स नॉट। और अगर हम के एक्स नॉट को सब्जेक्ट बनाए mg माइनस सिग्मा vg, हाँ बट यहाँ वॉल्यूम आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कितना वॉल्यूम सबमर्जेसिव, हाफ, तो ये v/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? v/2 एंड दिस इज g। और हम इसको आगे सॉल्व करें तो सिग्मा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो यहाँ आपको दिया है सिलेंडर का मास m है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है एंड लेंथ, इट्स वर्टिकल लेंथ इज l। वर्टिकल लेंथ कितना है? l है। सिलेंडर की बात की हमने, ब्लॉक लिया तो इसकी जगह पे मैं अगर इसका वॉल्यूम लिखूं तो एरिया इंटू लेंथ बाई 2। चलिए, और अगर हम को सॉल्व करें आगे तो एक्स नॉट को सब्जेक्ट बना लो, एम जी को कॉमन निकाल लो, ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। एम जी कॉमन निकल लिया ना, 1 माइनस सिग्मा ए और बचेगा एल। और यहाँ पे आपने एम को कॉमन निकाला है तो यहाँ एम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप एम जी अब मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऊपर का हमारा स्टेप है वो आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एम जी बाई के 1 माइनस एल ए सिग्मा बाई 2m। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये भी बात। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट is given. Next question is that a jar filled with two non-mixing liquid, one and two having densities rho 1 and rho 2 respectively. A solid ball made of material of density rho 3 dropped in the jar. It comes to equilibrium in the position shown in figure. आपको कुछ डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ है कि दो लिक्विड हैं। कितने लिक्विड दिए हैं? दो लिक्विड, जिसमें लिक्विड 1 तो ऊपर दिया है, इसका डेंसिटी है रो 1 लेना है आपको, एंड यहाँ एक आपको दिया है सॉलिड बॉल मेड ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो 3, वो यहाँ स्टेबल है। और नीचे जो आपको दूसरा लिक्विड दिया है इसका डेंसिटी 2 है, हाँ 2 लिक्विड जिसका डेंसिटी रो 2 है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए कि भाई कौन सा करेक्ट होगा। तो जैसे हमने डायग्राम में जो चीज़ें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम बता ही सकते हैं कि भाई रो 1 इज लेस देन रो 3 इज लेस देन रो 2। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होगा सेकंड लिक्विड का, फिर इसके बाद डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब एज कम्पेयर टू लेस होगा रो 2 सेकंड लिक्विड से, जो सॉलिड बॉल आपने रखा है वो, और सबसे कम डेंसिटी होता है लिक्विड 1 का क्योंकि वो ऊपर है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया है रो 1 लेस देन रो 3 लेस देन रो 2, तो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए। इसी तरह हंसते रहिए, चैनल को, सारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।